ritual. So we do this Diya ritual where we invite Brahma, Vishnu, Mahesh with 3 lamps, and we do a short, quick session. So we lit the lamp. Deepam Jyoti Param Jyoti, Deepam Jyoti Janardhanah, Deepo Hare Tume Papam, Deepam Jyoti Namostute, Shubham Karotu Kalyanam, Ayurarogya Sukha Sampada, Shubham Karotu Kalyanam, Ayurarogya Dhana Sampada, Shubham Karotu Kalyanam, Sarva Sukha Shanti Preeti Sampada, Shatru Buddhi Vinashaya, Deepa Jyoti Namostute, Dvesha Buddhi Vinashaya, Deepa Jyoti Namostute, Klesha Buddhi Vinashaya, दीप ज्योति नमोस्तुते क्लेश बुद्धि विनाशाय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमोस्तुते गुरु ज्योति प्रदीप्ताय सत्य चित्त ज्योति नमोस्तुते ओम दीप दिव्याय नमो नमः। So first thing is that we invite the fire energy, because the whole energy system is with the fire inside our Manipura chakra, in all our spine centers. So it is not only like deep in a traditional way, but inviting the fire energy to be with us, because that's the fire which will inculcate that habit in us towards our spirituality and towards our progress. Now we do a small, everyone please close your eyes and feel the sound vibrations. Join your palms at your heart center and feel the sound vibrations. Everybody mute your, who are not, please mute your, feel the sound vibrations. Madhavi, there is a little sound not very clear. Yeah, actually there is someone who, people have to, actually you can unmute everyone. You can mute everyone. Later we can open. Okay. Only keeping me, you can. Yeah. Otherwise, everyone has to just mute, because then the sounds are coming from behind. Right. Please close your eyes. Join your hands at your heart center. Close your eyes and feel the beautiful vibrations of the universe around you. We all know the Guru Mantra, so we will chant the Guru Mantra followed by 3 times Om and 3 times Shanti. Gurur Brahma, Gurur Vishnu. Repeat after me. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. I will chant this. You can listen with your hands folded at your heart center. Akhandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हिरण्यगर्भाधाराभ्यां शेषव्यासाधिमध्यमा स्वामी श्रीरामपादान्तां वन्दे गुरुपरम्परा। Om. You can repeat after me. Om. Shanti, Shanti, Shanti. We can now open our eyes. Nicely rub it, gently take a shower. Namaste once again to everyone. I will give you a quick introduction on Munima. Okay, she is a psychologist, a PhD in psychology. Spiritual journey has been a part of her life for last 2 decades, and I really feel fortunate that she's with us today, supporting Ojaswin and mentoring us in our endeavors to help people to be joyful is only our objective. Joy and happiness is what Ojaswin preaches. So there will be another session where we will do, like, a detail about Ojaswin and what all activities we do. But this program is specially dedicated for Kriya Yoga practitioners who are willing to take up Kriya Yoga as a practice. She is here without any cost. Whatever donation you wish to give later, you can give when we do our sessions, but there is no cost, there is nothing. She is willing to share her practices with all of us in a format. We will have certain online sessions where there will be introduction and exercises will be taught, and then there will be face-to-face sessions in Pune and Mumbai as well. So this is going to be a very nicely scaled out program for Kriya Yoga, specially led by Munima, and I'm fortunate that she's here. Over to her to take up the class. Thank you. Thank you, Madhvi. And thank you everyone for coming here and joining me. So first tell me, is everybody comfortable with English या हिंदी? किस में बात करें? वैसे मैं comfortable ज़्यादा इंग्लिश में होती हूँ, लेकिन दोनों हम या तो इंग्लिश कर सकते हैं. कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल भी इंग्लिश में एकदम इंग्लिश में प्रॉब्लम है कंप्लीटली? इंग्लिश इज ओके? सभी म्यूट पे है एक्चुअली. अच्छा, ओ, लेकिन सब अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को. अभी अनम्यूट कर सकते हैं, अभी अनम्यूट कर सकते हैं. हाँ, इंग्लिश इज ओके? ओके, यस, ठीक है. और अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा. तो थैंक यू अगेन माधवी. तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सब आए हैं यहाँ पे क्रिया योग के बारे में जानने के लिए. और मेरी तो सांस सांस में क्रिया योग बसा है. तो लेकिन पहले क्रिया योग से के बारे में मैं बात करूं, मैं आप लोगों के साथ, हम लोग एकदम शुरुआत से शुरुआत करेंगे. ओके, वी विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्रिया योग तो एक स्पिरिचुअल पाथ है. स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? हम स्पिरिचुअल पाथ पे आते ही क्यों हैं? हमारा पर्पस क्या है? हमें क्या मिलेगा स्पिरिचुअल पाथ से आने के लिए? फिर अगर हमें स्पिरिचुअल पाथ पे आना है तो कौन कौन से ऐसे पाथ्स हैं जो अवेलेबल हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो शुरू करते हैं पहले, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी. और आप लोगों के जब अगर सवाल होंगे, आई एम श्योर बीच में आएंगे, आप क्या करिए, चैट में टाइप इन करके डाल दीजिए, ताकि मैं बाद में वो सब क्वेश्चंस लूंगी. और हम ज्यादा बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे. मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है? श्योर. तो
स्पिरिचुअलिटी कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके से लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ मेरी डेफिनेशन क्या है स्पिरिचुअलिटी की। तो स्पिरिचुअलिटी है अपने तत्व को जानना, मतलब नोइंग योर एसेंस। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। एंड व्हाट इज इट दैट हैपेंस व्हेन यू फाइंड योर एसेंस? then there is nothing else that you need to know. Essence is something when you find, after which there is no need for anything else. There is no need to know anything. उसको जानने के बाद ना कुछ पाना है, ना जानना है, ना करना है, कुछ भी नहीं है। वहां पर पहुंच के अपने स्पिरिचुअल तत्व को जानकर क्या होता है? You become completely free. There is end of suffering. There is eternal peace and bliss, and that is what all of us are looking for. अगर हम लोग यहाँ पे आज आए भी हैं, हम लोगों ने एक स्पिरिचुअल पाथ लिया है, उसके ज्यादातर दो रीजंस होते हैं। एक रीजन होता है सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसा लॉस होता है, किसी का फाइनेंशियल लॉस, किसी का डेथ ऑफ अ लव्ड वन, या फिर आप जो भी संसार में आज तक आपने सीखा है, करा है, आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है कि ये इनफ नहीं है, कुछ तो और है। मतलब मुझे सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर अगर सब कुछ मिल भी जाए तो भी एक पूरा अंदर से हमें एक कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन नहीं आती है। और एक डर हमेशा रहता है कि क्योंकि खोने का हमेशा डर है। आज आपके पास कुछ भी हो, कितना भी पैसा हो, आपके सारे लव्ड वंस आपके साथ हो, कितना भी आप अच्छा कर रहे हो, हेल्थ अच्छी हो, लेकिन कल को क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, कोई कुछ नहीं कह सकता। अब जैसे सबकी लाइफ, बहुत सारे लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कहाँ से कोविड आ गया और कहाँ से सब लाइफ डिस्टर्ब हो गई। तो मतलब कुछ देर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। तो क्या लाइफ ऐसे ही है कि बिल्कुल एवरीथिंग आउट ऑफ आवर कंट्रोल, और हमेशा हम सुख दुख और उसके झूले में झूलते रहेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, अगर सोचे कुछ तो ऐसा जरूर होगा कि जिसको पाके हम इस सुख दुख को ट्रांसेंड कर सकते हैं, जहां पे हम ये सारा ड्रामा को के ऊपर जा सकते हैं। अगर हम देखें भगवान बुद्ध ने क्या किया था, उनका यही तो रियलाइजेशन था, नहीं? कि जब वो कितने यंग थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, वो तो राजा के बेटे थे, इतनी सुंदर पत्नी थी, बेटा था, सब कुछ, क्या कमी थी उन्हें? लेकिन सिर्फ एक बूढ़े को देख के, एक आदमी जिसकी डेथ हो चुकी थी और एक बीमार आदमी को देखकर ही वो समझ गए कि यहाँ पर सब कुछ इम्पर्मानेंट है, यहाँ पर कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो फिर क्या है जो परमानेंट है, जो मुझे ढूंढना है? ये यहाँ पे नहीं मिलेगा वो। और यही सोच के वो चले गए थे ढूंढने के लिए। बिल्कुल हम भी यही बात कर रहे हैं कि हमारा भी अगर स्पिरिचुअलिटी का पर्पस क्या है कि आप उस तत्व को ढूंढ लीजिए, उस एसेंस को, उसको जान लीजिए, जिसको जानने के बाद बस फिर यू ट्रांसेंड द डुअलिटी। फिर सुख दुख, अच्छा बुरा जो भी है, पोलैरिटी, देखिए क्रिएशन में सब कुछ पोलैरिटी है, वो फिर आप उसके ऊपर चले जाते हैं। ये नहीं है ये फिर भी चलता रहेगा, लेकिन वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। इट विल स्टॉप इम्पैक्टिंग यू। दैट इज द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके, अब अगर हमें स्पिरिचुअलिटी में आना है, हाँ, तो मैंने बताया था एक लोग जो सफरिंग के थ्रू आते हैं, और दूसरे लोग ऐसे भी आते हैं जो बहुत क्यूरियस होते हैं जानने के लिए ये है क्या, ये जो हम कहाँ से आ गए, where have I come from, where do I have to go, what is the purpose of my life, is my purpose of life only to be born, study, get a job, have a family, have kids, deal with all the problems of life, some joys of life, and then die? Is that what the purpose of life is? तो कुछ लोगों को ऐसे इस बिना सफरिंग के ये चीज जो है लगता है कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट एनफ, देयर इज समथिंग मोर, और फिर वो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो जनरली दो तरह के लोग ही स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जिनको अभी भी वर्ल्ड से बहुत प्यार है, जो एंजॉय कर रहे हैं वर्ल्डली चीजें। और ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में सुख नहीं है, सुख है, तभी तो सब लोग वर्ल्डली चीजों के पीछे भागते हैं, पैसा, पावर और पोजेशंस, रिलेशनशिप्स, इन्हीं चीजों के पीछे तो भागते रहते हैं, है ना? और उनको अभी भी मजा आ रहा है और उनको वही चाहिए, एंड विच इज ओके, एब्सोल्युटली। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर लिया है कि नाउ वर्ल्ड इज नॉट एनफ,
वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू गिव मी, इट इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई मी। अगर मुझे सब कुछ भी मिल जाए तो मेरे लिए एनफ नहीं है। वो लोग स्पिरिचुअल उस पे आते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं जो आ गए हैं कि हाँ अब मुझे भी वर्ल्ड के आगे जाना है, मुझे ट्रांसेंड करना है, तो अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। ओके, तो मैं अब आपको यहाँ पे आई विल जस्ट शेयर अ क्विक स्लाइड विद यू, क्योंकि आपको फिर उसमें समझ में आएगा। देर आर डिफरेंट स्पिरिचुअल पाथ्स एक्चुअली। और एक कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? ओके, Yes. तो जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अब स्पिरिचुअल में आना है, मुझे ये जो सफरिंग है इसको ट्रांसेंड करना है, और मुझे भी वो जानना है जो बुद्ध ने जाना, जो कृष्ण ने जाना, जो बहुत सारे संतों ने जाना, तो कैसे मैं जानूं? तो अब हमारे ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ये ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट है, but more or less all the paths come over here. So there are 6 kind of paths which are there. एक होता है पाथ ऑफ नॉलेज और ज्ञान मार्ग। अगर आपने सुना हो अद्वैत के बारे में, नॉन डुअलिज्म के बारे में, इवन कश्मीरी शैविज्म और हमारा सिखिज्म, ये आते हैं ज्ञान मार्ग। यहाँ पे या शंकरा की फिलॉसफी, आदि शंकराचार्य ने जो फिलॉसफी दी थी, वो आती है ज्ञान मार्ग के अंदर। जहां पे अगर आपकी इंटेलेक्ट बहुत हाई है तो गुरु के वचनों से, गुरु जो वाक्य बोलते हैं उन वाक्यों को समझ के, उनके ऊपर मनन करके और निधिध्यासन में रह के आप उस तत्व को जान सकते हैं। तो ये होता है ज्ञान मार्ग। ये बहुत ही मुश्किल मार्ग होता है। जनरली बहुत बहुत कम लोग, बहुत रेयरली लोग इस पे कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई मेडिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको महावाक्य बोला जाता है और आपकी बुद्धि इतनी तेज होनी चाहिए कि वो उसको समझ सके। फिर होता है पाथ ऑफ योगा। ये काफी पॉपुलर है, हम सबको पता है। जैसे पतंजलि के जो योग सूत्र उसमें आते हैं, या जो माधवी बता रही हैं हिमालयन सेजेस, यहाँ पे योग मार्ग से हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, जिसमें हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिसेस, आसन, प्राणायाम करते हैं। और वो आसन प्राणायाम करते करते आपका जो आप सीखते हैं वो एक तरीका होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हठ योग करने से, पर आप योगा के प्रॉपर आसन प्राणायाम करने के बाद फिर से आप उस तत्व को जान पाते हैं। एक पॉइंट आता है जब आप उस तत्व को जान पाते हैं। ये मैं आपको बहुत ब्रॉडली बता रही हूँ, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर है पाथ ऑफ एनर्जीज, जिसको शक्ति मार्ग बोलते हैं। शक्ति मार्ग में आते हैं जहां पे मतलब एक मिस्टीरियस पाथ है जो पाथ ऑफ एनर्जीज है। इसमें क्रिया योग जो है वो पाथ ऑफ एनर्जीज के अंदर आता है। कुछ कुछ योगा का भी है, कुछ लोग उसको पाथ ऑफ योगा के अंदर भी मानते हैं, क्रिया योग, और पाथ ऑफ एनर्जीज में भी। जहां पे एक तरह से चक्र साधना रहती है, या जो कुंडलनी मार्ग है वो भी पाथ ऑफ एनर्जीज में आता है। और जहां पे प्राणायाम और कुछ एनर्जीज को जो आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हैं चारों तरफ, अभी हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी एनर्जी स्कैटर्ड है? क्योंकि हमारा माइंड स्कैटर्ड है। तो कुछ ऐसे प्रोसेसेस सिखाए जाते हैं जिसके थ्रू आप अपनी चेतना को, आप अपनी एनर्जीज को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। तो कुंडलनी मार्ग और क्रिया योग दोनों इसके अंदर आते हैं। फिर है पाथ ऑफ डिवोशन, जिसके बारे हम लोग सब जानते हैं, भक्ति मार्ग। जैसे कि जब बहुत आप किसी डेटी के डिवोशन में होते हैं, प्रेम में होते हैं, जैसे अगर हम बात करें इस्कॉन है या मीराबाई की बात करें, तो वो आ जाता है पाथ ऑफ डिवोशन, कि आपको इतना प्रेम होता है डेटी से या गुरु से कि वो डिवोशन में ही आप अपने तत्व को जान पाते हैं। फिर आता है पाथ ऑफ ओकल्ट, जिसको हम तंत्र मार्ग बोलते हैं। तंत्र मार्ग में भी होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट तंत्र और एक होता है डिपेंडेंट तंत्र। और डिपेंडेंट तंत्र में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है व्हाइट तंत्र और एक होता है ब्लैक तंत्र। इसको आपने सुना होगा
जो ब्लैक तंत्र होता है उसको हम वाम मार्ग या ब्लैक मैजिक जो बोलते हैं, अब वो नेगेटिव उसमें आता है। लेकिन तंत्र मार्ग होता है इच्छा पूर्ति के लिए, लेकिन तंत्र मार्ग में भी ये शक्ति होती है कि जो लोग कर पाए, बहुत बहुत कम लोग इस बात को कर पाते हैं, लेकिन जो कर पाते हैं वो भी आपको मतलब सहायक है, दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू अचीव द योर स्पिरिचुअलिटी, दैट मीन्स फाइंडिंग आउट व्हाट योर एसेंस इज। तो ये होता है ओकल्ट वाला। और फिर है पाथ ऑफ एक्शन, कर्म मार्ग। आप देखेंगे जितने भी रिलीजन्स हैं, कोई भी, वो सब के सब कर्म पे बहुत फोकस करते हैं कि अच्छे कर्म करो, सेवा करो, दैट मीन्स पाथ ऑफ सर्विस। तो अगर आपको, और ये हमको बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों को बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आप दो, सर्विस कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ईगो कम होती है ये करने से। इससे आप अपना दूसरों में अपने आप को देख पाते हैं, दूसरों के दुखों को समझ पाते हैं और हेल्प कर पाते हैं। तो अगर आप और कोई भी पाथ ना कर पाए, तो अगर आप पाथ ऑफ कर्मा सर्विस करते रहें, वो भी कहीं ना कहीं आपको काफी हेल्प करता है। तो और एक और चीज होती है पाथ ऑफ एक्शन या कर्म मार्ग की, हम शुरुआत भी वहां से करते हैं, मतलब कोई भी कर सकता है, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है सर्विस। तो और जब आप अपने तत्व को जान जाते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं बचता बजाय सर्विस करने के, सिर्फ सर्विस ही बचती है। आप देखिए जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने जानने के बाद सिर्फ बाकियों को दिया है, कुछ लिया नहीं है किसी ने, सब कुछ सिर्फ दिया। तो आपके आई एम श्योर बहुत सारे सवाल हो सकते हैं इसके बारे में, लेकिन हमारा पर्पस आज इसमें डिटेल में जाना नहीं है। अगर आप लोग चाहोगे हम लोग इसके लिए एक सेपरेट सेशन कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे अब क्रिया योग। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो रहा होगा स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्यों लेनी है, और क्या पाथ्स है हमारे पास स्पिरिचुअलिटी लेने के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट क्रिया योग। तो मैंने क्रिया योग शुरू किया था 2001 में, तो मुझे 22 साल हो गए हैं क्रिया योग करते हुए। और अगर आप मुझसे पूछो कि मेरी जिंदगी में एक डिसीजन अगर मैं बोलूं कि द बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ, तो दैट वाज लर्निंग क्रिया योग। ओके, तो क्रिया योग क्या है? तो आप में से कितने लोगों ने ये बुक पढ़ी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी? अगर नहीं पढ़ी है तो आई विल सजेस्ट कि आप जरूर इसको पढ़िए। बहुत ही अच्छी किताब है। जनरली जो लोग भी स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं, वो सब क्रिया ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जरूर पढ़ते हैं। और मेरी भी कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से ही शुरू हुई थी। और इसमें योगा परमहंस योगानंद ने बहुत क्लियरली क्रिया योग के बारे में बताया है और उसका गुणगान किया है, और उसी के थ्रू ये जो है काफी स्प्रेड हुआ है क्रिया योग जो है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री देती हूँ क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग पहले सिर्फ हिमालयन सेंट्स के पास होता था। सिर्फ आपने सुना होगा कि कुछ लोग सब घर बार छोड़ के हिमालय चले जाते थे, हमने सुना होगा, और ऋषि मुनि जो हिमालय में रहते हैं। तो ये सिर्फ ऋषि मुनि को ही बताया जाता था जो क्रिया योग है, क्योंकि ये इतना एडवांस्ड पाथ है और इससे आपका एवोल्यूशन इतना तेज होता है कि जो लोग संसार को छोड़ देते हैं सिर्फ उनको सिखाया जाता था। फिर लहरी महाशय जो एक क्रिया योग के गुरु हैं काफी बड़े, उन्होंने जब दीक्षा ली, वो हिमालयास गए थे और महाअवतार बाबा जी से उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा ली। और उन्होंने महाअवतार बाबा जी को ये प्रे किया कि क्यों ना ये जो अब हाउस होल्डर्स हैं, जो गृहस्थी हैं, जो संसार के लोग हैं, क्यों ना इतना दुख है वहां पे, क्यों ना उनको भी ये अब सिखाया जाए। तो उनकी परमिशन लेके आप बोल सकते हैं कुछ 1860s में क्रिया योग ये आया गृहस्थियों के पास, और वो रहते थे बनारस में लहरी महाशय, और उन्होंने क्रिया योग धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। फिर उनके बहुत सारे जो शिष्य हुए, उन्होंने क्रिया योग को बढ़ाया। उनके एक शिष्य थे श्री युक्तेश्वर गिरी जी, और फिर युक्तेश्वर गिरी जी के जो शिष्य थे वो थे परमहंस योगानंदा, जो कि वेस्ट में गए। ये है 1950s की बात।
ये जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है ये 1950s में लिखी गई है। वो वहां पे गए और वहां उन्होंने ये बुक लिखी और काफी स्प्रेड किया। उसके बाद से क्रिया योग ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी पॉपुलर हुआ है और आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। योगानंदा जी की भी सेट की हुई, जैसे YSS अगर आपने सुना हो, SRF है, आनंदा है, फिर बिहार स्कूल ऑफ योगा है। तो काफी अब क्रिया योग सिखाया जा रहा है। तो ऐसे ही जब मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, मतलब मुझे लगा कि मैं तो आई ही क्रिया योग करने के लिए हूँ। ये 22 साल पहले की बात है। और जैसे कि लक था तो मुझे गुरु मिले और फिर मैंने क्रिया योग के अंदर दीक्षा ली, क्रिया योग करना शुरू किया। और उसके बाद जो मैंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पाया, बहुत अमेजिंग। मतलब मैं बिल्कुल बिल्कुल ऑर्डिनरी, कुछ स्पेशल नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं ये नहीं बोल रही आज स्पेशल है, लेकिन सिर्फ वो क्रिया योग की प्रैक्टिस करने से इतना बदलाव आया है मेरी लाइफ में, सब कुछ। तो इसीलिए मैं सबको, जो भी कोई इंटरेस्टेड होता है, तो मैं बिल्कुल बोलती हूँ कि आप क्रिया योग सीखिए। तो क्रिया योग क्या है? क्रिया योग जो है एक सेट ऑफ, एक एडवांस्ड एक्सरसाइज प्राणायाम्स है। मैं इसमें से आपको ना पहले ऑटोबायोग्राफी में से पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये अगर आप लोगों के पास ऑटोबायोग्राफी अगर आपने नहीं भी पढ़ी हो तो ये नेट पे भी अवेलेबल है फ्री में, और आप उसमें चैप्टर 26 पढ़ सकते हैं, विच इज साइंस ऑफ क्रिया योग। मैं उसमें से 2-4 चीजें आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे लिखा है, क्रिया योग is the union with the infinite through a certain action or rite, which is called kriya. A yogi who faithfully practices this technique is gradually freed from karma or the lawful chain of cause-effect equilibrium. So very clearly he has given, by practicing kriya yoga, if you practice it faithfully, आप सर्व कर्म बंधनों से फ्री हो जाएंगे। और जो एडवांस्ड क्रिया योगी होते हैं उनका कुछ कर्म बंधन नहीं रहता, वो अपने कर्म बंधनों की वजह से उनके कार्य नहीं होते, बल्कि उनकी गाइडेंस सीधी उसके बाद सोल से आती है या भगवान से आती है, जो भी आप बोल सकते हैं। Kriya Yoga is a simple psychophysiological method by which human blood is decarbonated and recharged with oxygen. The atoms of this extra oxygen are transmuted into life current to rejuvenate the brain and spinal centers. तो ये क्या है? बहुत सिंपल प्राणायाम की टेक्निक है, जिससे कि आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्रिएट होती है प्राण को कंट्रोल करने की वजह से, और आपकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कम किया जाता है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक मेथड, ओके। और क्या होता है, जैसे जैसे आपकी बॉडी में कार्बन कम होता है और ऑक्सीजन बढ़ता है, तो आपके ब्रेन के ऐसे सेल्स खुलते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं। आपका ब्रेन और आपका जो हार्ट और लंग्स हैं वो भी बहुत रिजुविनेट हो जाते हैं, और उससे आप वो समझ पाते हैं जो आप आज नहीं समझ पा रहे, जो कि आप मतलब हमारा ब्रेन डेवलप ही नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपका एक 5 साल का बच्चा है, अगर आप उसको एल्जेब्रा सिखाएंगे उसको समझ में आएगा? 5 साल के बच्चे को एल्जेब्रा समझ में आएगा? नहीं आएगा ना, एक 5 साल के बच्चे को। लेकिन वही बच्चा जब 10 साल का हो जाएगा और तब आप उसको एल्जेब्रा समझ कराएंगे तो उसको समझ में आने लगेगा, है ना। सिंपल चीजें अगर आप उसको बोलेंगे 2x + 3x इज इक्वल टू, करेक्ट, सिंपल चीजें वो समझने लगेगा। तो क्या हुआ है, मतलब 5 साल में उसका ब्रेन डेवलप हो गया है एल्जेब्रा समझने के लिए। या हम देखते हैं ये बच्चों में एक पॉइंट पे चीज कुछ समझ नहीं आती, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो समझ में आती है। ऐसे ही अभी हम अपने आप को क्या जान रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं और मैं ये मन हूं, और बस ये संसार है और ये मेरी फैमिली है और मुझे इनके लिए कमाना है और मुझे बस ये इन लोगों का ध्यान रखना है, बस यही मेरी जिंदगी है। आपको इतना ही समझ में आ रहा है। लेकिन जब हम क्रिया योग करते हैं उसके प्रोसेस से आपके ब्रेन के सेल्स इस तरह से खुलने लगते हैं कि आपको वो चीजें समझ में आने लगती हैं, आपको वो चीजें दिखाई देने लगती हैं जो आप अभी नहीं देख सकते। जैसे कि आपको ये पता होगा कि अभी भी अगर अगर मैं अभी देखूं मेरे सामने,
तो ये सिर्फ खाली स्पेस है, हवा है ना, मुझे कुछ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, सिर्फ लाइट और हवा की फीलिंग हो रही है। लेकिन हम यहाँ पे अगर एक माइक्रोस्कोप ले आऊं मैं बड़ा सा और उससे देखने लगूं तो मुझे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे, है कि नहीं? यहाँ पे मेरी आंख देख नहीं पा रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तो हमें पता है, साइंस हमें प्रूव कर चुकी है। तो मतलब माइक्रो और वो जो है उसकी वजह से मैं ये देख पा रही हूँ। इसी तरह से जब मेरे ब्रेन के हमारे सेल्स खुल जाते हैं तो हम वो चीजें अनुभव कर पाते हैं जो हम आज नहीं कर पाते। ये आपको क्रिया योग हेल्प करता है। और उससे क्यों हमें वो देखना और जानना है, क्या होगा वो देखने जानने से? तभी जब आप देखेंगे बड़ी पिक्चर, द बिग पिक्चर, तो जो हम अपनी छोटी छोटी लिमिटेशंस में, जो हमारा एक पेटी माइंडसेट होता है, जो हम एकदम छोटी चीजों में फंसे हुए हैं, हम उनसे फ्री हो जाते हैं। ये उसका फायदा होता है। जब बाबा जी ने लहरी महाशय को इनिशिएट किया था क्रिया योग में, तो उन्होंने ये बोला था, द क्रिया योग दैट आई एम गिविंग टू द वर्ल्ड थ्रू यू इन दिस 19th century is a revival of the same science. It is the same science that Krishna gave to Arjuna, that Patanjali and Christ knew, and Saint John, Saint Paul and other disciples. तो ये सब क्रिया योग का ही जब उन्होंने बताया है वही क्रिया योग है। तो ये सब लोग ने क्रिया योग किया हुआ है। युक्तेश्वर गिरी जी ने बहुत क्लियरली बताया है कि क्रिया योग का पर्पस क्या है। जो ह्यूमन एवोल्यूशन है उसको बहुत तेज कर देना। क्या होता है, एक नॉर्मल एवोल्यूशन भी हमारा बहुत स्लो चल रहा है। हम सबका एवोल्यूशन हो रहा है लेकिन बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। और क्रिया योग से वो बहुत फास्ट हो जाता है। कितना फास्ट आप बिलीव कर सकते हैं कि सिर्फ एक क्रिया ब्रेथ से, अगर आप सिर्फ एक क्रिया ब्रेथ जब लेते हैं, आप 1 साल आपका एवोल्यूशन हो जाता है, पूरा 1 साल। और जब आप क्रिया योग की इनिशिएशन होती है तो शुरू में आपको सिर्फ 14 ब्रेथ्स लेनी होती हैं, 14। तो एक दिन में आप 14 साल आपका एवोल्यूशन होता है। और अगर 14 साल के हर रोज के हिसाब से अगर हम 365 डेज में लगाएं तो 1 साल में आपका इतना एवोल्यूशन हो जाता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन का कितने सालों में होगा, 365,000 ईयर्स। तो ये आप कैलकुलेशन उसके अंदर कर सकते हैं। क्रिया योग का जो मेंशन है वो भगवत गीता में भी दिया गया है, चैप्टर 29 और स्टैंजा, ये वर्स नहीं सॉरी, चैप्टर 4 एंड वर्स 29, जो कि है, अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे, प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाम। By offering the incoming breath of the pran into the outgoing breath of apan, and the outgoing breath of apan in the incoming breath of pran, thus arresting the cause of inhalation and exhalation, the yogi makes the breath unnecessary and merges with the infinite. इसका क्या मतलब है कि प्राणायाम की जो ये क्रिया प्राणायाम की जो टेक्निक है उसमें आपको पता होगा, वैसे हमारी 5 वायु हमारे अंदर काम करती हैं और उनमें 2 जो है वायु वो है प्राण वायु और अपान वायु। जिनको थोड़ा योगा का ज्ञान होगा वो ये समझ पाएंगे प्राण का। तो प्राण वायु और अपान वायु, और प्राण क्रिया योगा प्राणायाम में प्राण वायु और अपान वायु मर्ज हो जाते हैं। मतलब प्राण वायु में अपान वायु और अपान वायु में प्राण वायु, और जब ये दोनों मर्ज हो जाते हैं देन इट बिकम्स न्यूट्रल, एकदम न्यूट्रल हो जाता है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उससे अपने आप केवल कुंभक लग जाता है। केवल कुंभक मतलब आपकी सांस बंद हो जाती है लेकिन आप फोर्सफुली सांस नहीं रोक रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में इतना ऑक्सीजन जा चुका है, इतना प्राण भर चुका है कि वो आपका केवल कुंभक लग जाता है। और तब आप जान पाते हैं
कि आप एक हो जाते हैं उसके साथ, उस परमात्मा के साथ, उस पॉइंट के साथ. एंड दैट इज द पर्पस ऑफ क्रिया योगा. दैट इज व्हाट इट डज. और इसमें आपको कुछ बिलीव नहीं करना है, मानना नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर आप कुछ आपको फेथ हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ये पूरा साइंस है. देखिए, जब हम साइंस करते हैं, अगर आप रेड कलर में व्हाइट कलर को मिक्स करोगे तो आपको बिलीव नहीं करना है, वो पिंक बन ही जाएगा, है ना. अगर हम रेड में येलो मिक्स करेंगे तो वो ऑरेंज हो ही जाएगा. ऐसा नहीं है कि हमें मानना पड़ेगा या विश्वास करना पड़ेगा, नहीं, वो एक प्रोसेस है. तो क्रिया योग भी अगर आप एक प्रोसेस की तरह पूरा बस सिर्फ उसको प्रैक्टिस करना होता है पूरी तन्मयता से, सिंसेरिटी से, तो जिस दिन आपके अंदर इतनी प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी क्रिया करते करते कि आपकी अपान वायु और प्राण वायु दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाएंगे, उस दिन वो घटना घट जाएगी. वो घटना जिसको घटने के बाद आपका सारे दुख खत्म हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं. तो ये होता है क्रिया योग. अब क्रिया योग के मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि 3 तरह से इसके 3 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले, क्योंकि क्रिया योग जैसे मैंने आपको बताया, एक ब्रेथ इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावरफुल है कि वो आपको 1 साल आगे ले जाती है. तो कोई भी नॉर्मल इंसान या आप एकदम से क्रिया का इनिशिएशन नहीं ले सकते हैं. आपको अपनी बॉडी को उस ब्रेथ को लेने के लिए तैयार करना पड़ता है. तो क्या होगा, पहले हमारी 38 एक्सरसाइजेस होती हैं, एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस, कॉस्मिक एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं. उनको करने में सिर्फ सीखने के बाद 15 से 18 मिनट लगते हैं. आप वो 38 एक्सरसाइजेस करिए. एक्सरसाइजेस करने के बाद 5 तरह के प्राणायाम्स होते हैं. वो प्राणायाम भी आपकी जो एस्ट्रल बॉडी, मेंटल, जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं. और फिर आप 6-8 महीने, 1 साल आप ये करते रहिए. उसके बाद आपको जब लगता है कि अब आप तैयार हैं, आपको जो भी सिखा रहे हैं वो आपको चेक करेंगे कि आप तैयार हैं कि नहीं हैं, और फिर आप क्रिया में इनिशिएट हो सकते हैं. और फिर आप जब आप क्रिया की आपको ब्रेथ लेनी सिखाई जाएगी, उसको क्रिया की दीक्षा बताई जाती है. और ये आप सिर्फ तब लें जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब क्रिया योग ही करना है. that becomes your priority in life, that becomes your lifestyle, and then you just continue to do that particular practice. And one day, and nobody knows when that day is going to come, that day can come in 1 day also, 1 year also, or maybe few years or lifetime, but one day that will happen, that you will be one with this cosmos, you will be one with the infinite, and you will not know who you are. तो मैं यहाँ पे अब पॉज करती हूँ. आई एम श्योर आप लोगों के काफी सवाल होंगे. सो मेरे पास तो बहुत कुछ है क्रिया योग के बारे में शेयर करने के लिए, लेकिन बेटर होगा कि आप लोग अपने सवाल पूछिए, ताकि हम लोग फिर मैं अकॉर्डिंगली आंसर कर सकती हूँ. आपको कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया हो तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए, या आपके कोई और क्वेश्चंस हो प्लीज फील फ्री. संगीता जी, एके जी, नमस्ते. म्यूट पे ही है वो दोनों, कोई बात नहीं. नाइट रे जी, नमस्ते सर. आप इन्हें पहचानते हैं मैम? नहीं. माँ? नहीं. ओके. नाइट रे जी, नमस्ते. कुछ आपको पूछना है? सुन रहे हैं या नहीं पता नहीं. I have a question. Yes, please. Yeah, Yes. yeah. So Monu, I'm asking a negative question. It was fantastic. No problem. Negative in the sense, what are the challenges? Because I really, really liked it. What? So, like, what are the challenges in doing this? What do doing people Kriya drop out? Yeah. Okay. So challenge is that you have to make it a number 1 priority. The Kriya Yoga can only be practiced on an empty stomach. Okay.
So that means that you have to make it a first priority, that you get up early in the morning, and before you have your food, you should do your practice and complete it. And second thing is, you need to do it every day. So you need to be really disciplined about it. You can't be that, okay, a few days I have done, then I have left it, then I will do. No. It will not work. And because Kriya breath is very powerful, if it is, making you evolve 1 year in just one particular breath, if you are taking that big a flight, if you suddenly stop it in between, it can also bring in a little bit of health challenges, right? There is a possibility. So that's why there is a long process about it, that you learn the exercises, you do the pranayams, and only when you are completely convinced that this is what I'm going to do. See, it is just like a person, when you take an admission in an engineering college or a medical college, right? You know that for the next 4, 5, 6 years, you have to get up and study every day, right? Yes, maybe once in a day or somewhere, there is a possibility that you may not feeling well, whatever, but you just take that as a lifestyle. You spend so much time becoming an engineer, doctor, or whatever education that you have done. Here we are talking about becoming one with the infinite, matlab self-realization we are talking about. Can't you spend just 1 hour every day and give that a priority over anything else in your life? So, but still most people find that a challenge, because they are so, generally what I hear from a lot of people are, oh, today there is a wedding in the family, oh, I had guests in the day, there is some this happened, children are having exams, or I had to go there, or I had to do shopping. I mean, these things are not important at all. We are talking about the ultimate over here. You can spend 1 hour every day, so you have to make it the first priority. You can call it a challenge if you are not serious, but that is the only challenge. There is no other challenge. Ma, I'll just interrupt for a moment. I think AK, who has joined, wants to talk. Sure. I realize is Ashwini Kumar from Rishikesh, Dehradun, has joined, and he works for IBM. His phone is on mute, actually. Like, can you just unmute him? I don't know, somehow. No, he's unmuted. He's already unmuted. He's unmuted? Yes. Okay. AK, can you hear us? I'll just ping him one moment. Huh? Sure. Ritu, did I answer your question? Yeah. Very well. Thank you. Now I think he's unmute. He was already unmute. Ashwini, can you hear us? Yes, he's messaging that he can hear. Just check in the chat. He's answering that. Yeah. Okay, he's saying that he's already a yoga practitioner and he has questions. Yeah. Okay, he's written, real need to enhance my energy, and it might Kriya Yoga can help more. Okay, but I would like to understand from you, AK, that what do you mean when you say enhance my energy? Because it can mean different things to different people. What do you mean when you say enhance your energy? You can type it in. If you cannot speak, no problem. Sangeeta, I'm going to come to you. You have a question. Just give me a moment. We can take Sangeeta ji's question. Meanwhile, okay, we can always answer Ashwini. Sure. Okay, Ritu is saying Dr. Sangeeta is my bua. Okay. Hello. Yes, please go ahead. He joined from Dehradun. So we have 2 people joining. Guruji, namaste. You can't hear us. Sachdanand Vishwal ji is also there from Rishikesh. How nice. Namaste. I'm seeing like night ray. Sorry. I'll take a moment from you, Munima. Sorry to step in here. No problem. Really, and Swamiji is from Rishikesh, another mentor of mine.
He's been a pathfinder for me, honestly. Thick and thin, he's like my elder brother from Rishikesh. Okay. And Um, he's a Kundalini practitioner. So over to you. Sorry. and Yeah, Guruji, anything you want to yeah, talk? Munima, just I like to tell you that I also a practitioner of YSS, Yoga Satsang Society, Oh, very and nice. I have an opportunity to meet International Secretary Smarnaran ji. She is coming from Bihar, and I have accommodated in when I am in Pondicherry, Sri Aurobindo Ashram. So we are staying together 3 days, and in that time we open a center in Pondicherry, and that is going on. Now there are others, more few center in the Pondicherry, and this is one of the time that I am very close to Swamiji, and she has start the center in Pondicherry, and now it is going on very beautifully. Many doctors are there, and now I am in Rishikesh, and I have practicing here in the Rishikesh, and we all meet that Madhavi ji, and I have heard about you. So it is a very good meeting, and really we go ahead with this path and with this practice and everything. So here also we have you can know that in Rishikesh there is a Kriya Yoga Ashram Yes, yes. by Hariharananda ji. Shankaranand Giri ji. Yes, Yes. correct. And I've been there. yesterday night we talked about an hour. Okay. And so whenever you come to Rishikesh, here we are to welcome you, and That would be it wonderful. is our Thank you. I keep coming to Rishikesh very often. So definitely I will contact you. Thank you so much. please go ahead for the question. Sure. Thank you. Thank Yes. you. Yes, Dr. Sangeeta. You will need to unmute yourself. आप अभी भी म्यूटेड हैं. हाँ, अभी अनम्यूट हुए थे, फिर से म्यूट हो गए. हाँ जी, अच्छा नहीं. आपको अनम्यूट करना होगा, डॉक्टर संगीता. Monu, maybe you could unmute. Maybe she's struggling with it. Yeah. हाँ, हो गया. Now it happened. yes. हाँ. पहले तो थैंक यू सो मच. इतने सिंपल और सुंदर तरीके से आप एक्सप्लेन कर रही हैं, जो कि ऑलरेडी रितु ने मुझे आपकी इतनी तारीफ की है बहुत साल से, और आई वाज टेलिंग हर कि प्लीज आई वांट टू लिसन टू हर. सो थैंक यू सो मच रितु का भी और आपका भी कि आपने आज आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लिसन टू यू. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड अभी तक. सो माय क्वेश्चन इज कि यदि आप किसी की वजह से या अपनी वजह से एकदम से हर्ट हो जाए, तो इंस्टेंट उस समय क्या करें? इफ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिया योगा and even if you are a learner or so what to do? Okay, very good question. Yes. तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, मतलब अपनी प्रैक्टिस में किस पॉइंट पे होंगे. और एक्चुअली मैं शेयर करूंगी, मैंने किसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, व्हाट इज योर 911. ओके, तो हम जनरली 911 कब फोन करते हैं किसी को? इमरजेंसी में करते हैं ना, इमरजेंसी नंबर है ना. तो उसका है कि अगर हम हर्ट हो जाते हैं तो मतलब वो भी एक इमरजेंसी हो गई ना, मैं हर्ट हूँ तो मैं क्या करने वाला हूँ. तो अगर आप क्रिया योग में एडवांस्ड प्रैक्टिशनर हैं और आप समझ चुके हैं, ठीक है, आपका पर्पस, आपको अपना एसेंस समझ में आ गया है, तो आपको अपने अंदर एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहाँ पे डुअलिटी खत्म हो जाती है, जहाँ पे कोई दुख नहीं है. तो आप इमीडिएटली आप उस पॉइंट, पहले तो आप हर्ट होंगे ही नहीं. ओके, एग्जैक्टली. हाँ, कोई हर्ट होते ही नहीं हो.
अगर सपोज फिर भी चलो आप ह्यूमन बॉडी में हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, अगर आप हर्ट हो गए तो आप इमीडिएटली उस पॉइंट पे चले जाएंगे, और उस पॉइंट पे जाते ही विद इन सेकेंड्स दैट हर्ट विल बी गॉन। ये होता है, बट ये है फाइनल, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल थिंग। This will come after the practice, right? I mean, This will come after the practice and after you have known your essence. एक बार आप अपना जान जाए कि मेरा तत्व क्या है। when you know myself, yeah. Yes, when you know yourself, then that happens. ठीक है? उससे पहले जैसे जब तक वो नहीं होता, अगर मैं बात करूं तो मुझे जो एक चीज बहुत हेल्प करती थी, कोई भी परेशानी आती थी, एक तो है हर्ट हुए मेंटली साइकोलॉजिकली, एक होता है कोई भी परेशानी आई तो क्या करो, मैं क्रिया अपनी प्रैक्टिस करती थी, और क्रिया प्रैक्टिस करते करते ही मैं शांत हो जाती थी। तो ये मेरा उससे पहले मतलब एक प्रीवियस स्टेप होता था, है ना। और फिर क्या होता है, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि जब भी हम, एक तो मैंने बात की स्पिरिचुअल पाथ लेते हैं हम, है ना, कोई भी हमने जैसे बात की इतने सारे पाथ्स हैं, उसमें जो आपको पसंद आए, जो आपको अपील करे, तो आपको एक स्पिरिचुअल पाथ लेना बहुत जरूरी है अपने एसेंस को जानने के लिए। और दूसरी बात क्या है, वो पाथ के साथ आपको एक गुरु भी चुनना होगा, क्योंकि पाथ बिना गुरु के आप नहीं चुन सकते, ठीक है ना। चलो मैंने तुम्हें चुना। तो आपको गुरु चुनना होगा, और जो गुरु कैसे हम चुनते हैं उसके भी 3-4 चीजें हैं कि हमें गुरु को कैसे चुनना चाहिए। पहली बात, ठीक है, हम जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सा गुरु बड़ा पॉपुलर है, फेमस है। जैसे आजकल फॉर एग्जाम्पल सदगुरु बहुत पॉपुलर है ना, तो हर कोई चाहता है सदगुरु मेरे गुरु हो। बहुत अच्छी बात है, आप सदगुरु को गुरु बना सकते हैं, लेकिन वहां पे मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है कि सदगुरु आपको आप कभी पर्सनली नहीं मिल पाएंगे। यू विल नेवर गेट पर्सनल अटेंशन फ्रॉम द सदगुरु, ठीक है ना। तो आपका गुरु ऐसा होना चाहिए जो जानता है, जो पहली बात अपना तत्व जानता है, दूसरा वो अवेलेबल है, जो आपको पर्सनल अटेंशन देगा, जिसको आप, अगर आप हर्ट हो गए, ये आपका क्वेश्चन का जवाब था कि हर्ट हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करूं, तो गुरु इज योर 911, गुरु को फोन करिए। तो ऐसा एक्सेसिबल होना चाहिए। No, it won't be physically possible. मतलब मेंटली सोच लिया कि वो मेरे सामने है, राइट? नहीं, आप फोन कर लीजिए ना गुरु को, तो मैं तो बोल रही हूँ अगर एक्सेसिबल हो, तुम्हें फोन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप उनको फोन करिए, है ना। और गुरु का एक और क्या है, तीसरी चीज गुरु के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी बात आपको समझ में आए। देखिए, जितने लोगों ने जाना है, चाहे वो कृष्णमूर्ति हुए हैं, चाहे वो ओशो हैं, चाहे वो सदगुरु हैं, चाहे वो बुद्ध हैं, एक ही बात कह रहे हैं, कुछ फर्क नहीं। देखो, सच सिर्फ एक है, देयर इज ओनली वन ट्रुथ। इवन गुरु नानक देव ने भी वही बोला है, कृष्ण ने भी वही बोला है, कृष्णमूर्ति ने भी वही बोला है, और आज सदगुरु भी, और जो छोटा मोटा गुरु है वो भी वही बोल रहा है। हर कोई एक ही चीज बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हर एक की बात समझ में नहीं आती। किसी की बात ऐसी होती है जो आपको समझ में आती है, वो किस तरीके से बताता है, चीज वही होती है, लेकिन हर किसी का एक्सप्रेशन अलग होता है, हर गुरु का अपना एक्सप्रेशन होता है। अगर आप देखेंगे, अगर हम देखें इवन राम और कृष्ण को अगर हम लें एज भगवान, दोनों भगवान है, लेकिन कितने डिफरेंट है, एक्सप्रेशन इज कंप्लीटली, है ना। अगर हम कृष्ण मूर्ति को लें और ओशो को लें, दे आर टोटली डिफरेंट। लेकिन कुछ लोग हैं जो कृष्ण मूर्ति के फॉलोअर्स बने, दे वर बोथ कंटेम्पररीज, और कुछ लोग हैं जो ओशो के फॉलोअर्स बने, करेक्ट। तो कौन से गुरु की बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा और फाइनल पॉइंट, आपको ना गुरु से प्यार हो जाना चाहिए, बड़ा जरूरी है। मतलब जैसे वो जो प्यार होता है ना, जो इसको होता है, जैसे आपको टीनेज में प्यार होता है लड़के को लड़की से और लड़की को लड़के से, बिल्कुल ऐसा ही प्यार गुरु से हो जाना चाहिए। बस फिर तो मतलब नैया पार लग गई। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने के। बोलिए। एक क्वेश्चन और अभी पूछ लूं कि बाद में? नहीं, पूछिए, गो अहेड। हाँ, वो ये है कि अच्छा, एक तो ये हो गया। सेकेंडली, यदि आपको किसी से, चलो ये इसी क्वेश्चन का आगे है कि हर्ट किया या किसी की बात, एक मिनट माता जी, मेघा प्लीज मुझे थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा, गुरु चुनने का जो 4 मैंने स्टेप्स बताए ना, जस्ट मिस। हाँ, जरूर, बिल्कुल शॉर्टली थोड़ा ब्रीफ कर देंगे। जरूर मेघा, जरूर। संगीता 1 मिनट, डॉक्टर संगीता, जस्ट 1 मिनट। श्योर। तो पहला है कि गुरु आपके लिए पर्सनली अवेलेबल हो, जो आपको पर्सनल अटेंशन दे सके।
दैट इज Okay. द फर्स्ट थिंग। एक्सेसिबल होना Okay. चाहिए, ऐसा नहीं मतलब जैसे Yes. कुछ लोग होते हैं जो गुरु को बना लेते हैं, जो गुरु शरीर छोड़ चुके हैं। जैसे सपोज मैं ओशो को गुरु बना लूं, अभी क्या फायदा होगा? Okay. ओशो से अच्छा मुझे हाँ. कोई गुरु नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ओशो का बना के क्या करूंगी? वो तो शरीर में ही नहीं है ना। तो वो हाँ. शरीर में होना चाहिए, लिविंग गुरु होना चाहिए, और आपको एक्सेसिबल होना चाहिए, जिसको आप रीच कर Okay. सकते, पहली बात। हाँ, दूसरी हाँ. बात ऐसी है जो अपने तत्व को जानता है, ठीक है, जिसने अपने Okay. आप को जान लिया है। लेकिन आप कैसे जानेंगे? आप तो उसको टेस्ट नहीं कर सकते कि वो जान गया है कि नहीं जान गया है ना। आप कभी टेस्ट नहीं कर सकते ये बात। तो हम क्या करेंगे? हम Okay. देखेंगे कि किसकी बात मुझे समझ में आ रही है। कौन जब Okay. बोलता है तो मुझे अपील करता है, मुझे लगता है हाँ ये बात सही बोल रहा है, और ये मुझे ना अंदर तक जा रही है। होता है कि नहीं? हमारे फ्रेंड्स हाँ, में भी हाँ, हाँ. होता है, किसी किसी की बात फटाक से समझ में हाँ. आती है, किसी की बिल्कुल नहीं समझ में किसके आती। साथ हम जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं कि बिल्कुल उसका बात बिल्कुल। समझ में आता है एक बार में. हाँ, वही. क्योंकि बात तो सब वही कर रहे हैं, कोई अलग बात नहीं है, Exactly. लेकिन किसकी जी बात जी. मुझे समझ में आ रही है तो वो हाँ. देखिए, ठीक है। और हाँ जी. हाँ फाइनल जी. जो है वो ये है कि उससे प्यार हो जाना चाहिए, उसके साथ बैठो, मतलब उससे बात करो, तो आपको ऐसा लगना चाहिए मेरी ना एनर्जी अपलिफ्ट हो रही है, जस्ट उसके साथ बैठ के बात करके। यू जस्ट हैव टू फॉलो योर हार्ट, यू विल फील कि Okay. कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ बैठ के ही हाँ मेरी जी. एनर्जी अपलिफ्ट हो रही है। तो ये तरीके होते हैं चेक Okay. करने के लिए कि मेरा गुरु कौन है, ठीक है ना। Okay. Okay. हाँ, हाँ और आप जी. कभी Thank you भी जी. थोड़े टाइम कोई हाँ. किसी को गुरु बनाते हैं, देखिए बहुत जरूरी होता है स्पिरिचुअल पाथ पे गुरु बनाना, हाँ. हाँ. क्योंकि हम एक हाँ जी. अननोन टेरिटरी में जा रहे हैं, बिल्कुल अननोन टेरिटरी हाँ में। जी. और हाँ, वहां तो पे आपको कोई गाइडेंस. साथ में चाहिए गाइडेंस के लिए, जो उस अननोन टेरिटरी में जल चुका है, तो वो बहुत जरूरी चाहिए, ठीक है ना। तो गुरु हाँ जी. बनाना हाँ बहुत जी. जरूरी है। लेकिन अगर आपको किसी भी टाइम पे लगे बाद में कि नहीं मुझे लग रहा है कि मेरे को नहीं ये गुरु चलेगा, तो ऐसा भी नहीं करना कि आप चिपके रहें उससे, छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, अगर ओके. आपको किसी ओके. टाइम ओके. पे ऐसा लगे, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, तो नो हार्म नहीं इन। नहीं. फिर आप पता है कर सकते हो विंडो शॉपिंग, जैसे हम पहले डेटिंग करते हैं ना, शादी करने से पहले थोड़ा हाँ. डेटिंग किया, यार इससे शादी करे कि नहीं करे, तो थोड़ा गुरु के साथ भी डेटिंग करने से पहले 3-4 महीने उसके सत्संग सुनिए, हाँ. बात करिए, अच्छा लगे फिर डिसाइड करिए इससे शिक्षा दीक्षा हाँ. लेंगे कि नहीं लेंगे, ये तो छोड़ दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, किसी और गुरु को ढूंढिए, ठीक है। सही है. थैंक यू माता जी. श्योर श्योर, यस, सॉरी डॉक्टर संगीता, प्लीज। इट्स ओके, नहीं आई एम लिसनिंग, अच्छा हुआ मेरा रिवीजन हो गया। तो एक तो ये एक तो ये है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। और मेरा क्वेश्चन उसी को आगे मैं वो कर रही हूँ कि एक तो हर्ट का हो गया, फिर यदि हमें किसी ने हर्ट किया या किसी की बात हमें बुरी लगी, राइट, तो हमें उससे कहना चाहिए। मेरा जो अपना है कि मुझे लगता है कि नहीं कहना चाहिए, यू नो, यदि किसी की बात बुरी लगी तो वो हम कैसे उसको कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। उसे कहेंगे तो उसे लगेगा कि मैं तो अपने पर्सपेक्टिव से ठीक हूँ। जी जी, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब बिल्कुल जैसे ये मैं बिल्कुल पाथ समझ में आगे जाऊंगी तो शायद वो फर्क नहीं फिर पड़ेगा किसी ने क्या कहा, राइट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी देखिए, इसका एक कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं है, ये आपने नहीं साइकोलॉजी है, का राइट। क्वेश्चन पूछा है, ये स्पिरिचुअलिटी का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में पहले ओके तो कोई ओके, दूसरा ही नहीं रहता, कोई जब आप आगे बढ़ होता जाओगे ही नहीं स्पिरिचुअलिटी में, नहीं नहीं, मेरे को लगता है मेरे को लगता है जब स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ जाओगे ना, तो किसी का कहा लगेगा ही नहीं, नहीं लगता, नहीं लगता। अरे क्योंकि है किसी ना। कोई दूसरा ही नहीं रहता ना, पहली बात तो कोई हाँ दूसरा रहता ही नहीं है, सब आप ही हो जाते एग्जैक्टली, है ना। यस, तो इसलिए सिर्फ कोई, मुझे मेरे को ही नजर आना है, यस, जी जी मैं बिल्कुल। मतलब आई नो लेकिन ये माई सेल्फ, अनुभव से होना चाहिए, ये रियलाइज होना चाहिए, ये आपको एग्जैक्ट, अनुभव होना चाहिए कि बाकी सब मैं ही हूँ, मेरे हाँ। अलावा और कोई नहीं है ना। लेकिन चलिए, आपने साइकोलॉजी का सवाल पूछा है, तो भी मैं, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो इसलिए मैं आपको उसका भी जवाब दे देती हूँ। मैंने इसीलिए पूछ जी लिया, जी, बहुत अच्छा किया। और आई एम श्योर ये काफी लोगों का सवाल रहता है कि हमें अगर किसी की बात बुरी या लग जाए तो हमें उनको वापस बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। देखिए ये बहुत सिचुएशनल होता है, राइट, इसका कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं है। कई लोग होंगे आपके साथ जिनको आप बिल्कुल बता सकते हैं कि आपको ये बात बुरी लगी, अगर आप उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हैं, वो जो लोग हैं, और आपको पता है कि वो भी आपकी केयर करते हैं, ठीक है ना, तो आप उनको राइट, जरूर बताइए बुरी लगी। अगर थोड़ा मतभेद भी होगा तो भी क्लियर हो जाएगा, आप दोनों बात करके उससे कर सकते हैं। पर कुछ लोग राइट, ऐसे होते हैं जिनको आपको पता है बताने से कोई फायदा नहीं होगा, वो समझेंगे भी नहीं,
कि आपको बुरा लगा, और इसका भी एक और इससे बड़ी बात बना के आपको दोबारा से हर्ट कर देंगे, यू नो। वेरी राइट, वेरी राइट, यस, राइट, तो अभी तो उन्होंने एक थप्पड़ मारा है, आप इनको बोलेंगे तो आपको दो और लगेंगे वापस, है ना। उस केस में एग्जैक्टली, बेटर होता है चुप रहना, बेटर होता है वापस नहीं बोलना। यस, और उसके बाद एक स्टेप और करना होता है, वो स्टेप ये होता है कि इसका मतलब है वो पर्सन आपकी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि जो नहीं समझेगा, नहीं करेगा, शायद यू नो वो उस कैटेगरी में नहीं आता है जिसके साथ आपको रखने की जरूरत है। उसके साथ मिनिमल कर दीजिए अपना कांटेक्ट, मिनिमल, कम से कम। वेरी राइट, वेरी राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। हेलो, हाँ जी पूछिए, हेलो, प्लीज प्लीज गो अहेड। क्वेश्चन ये तो मैं ये कह रही हूँ कि थैंक यू सो मच, कि अपने साथ अपने आगे के जितने भी आपके वीडियोस और वॉट एवर सेशंस यू आर टेकिंग, इंक्लूड मी। थैंक यू, श्योर आई विल इंक्लूड यू, श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Ashwini ji is saying that he was driving or something actually later, so he had to ask questions, but he will connect with us later. I said no problem. Okay, sure, बिल्कुल, He anytime. didn't want to miss the session, being a Sunday. His wife is pregnant actually, so they were up to the doctor, I think, on the way. I Okay. said, so sweet of you that you joined at least. It's Yeah. okay, we'll connect with Ma later. बिल्कुल So I hope more questions are coming from all of us. Any more questions? Bharti ji, you have any questions? Veena ji to knows you, I think, so she must be like बिल्कुल। already knowing you. So I would love to now share my experience. Can I? Yes, please go ahead. Yeah. So friends, actually, I would just love to share my experience with Munima. Okay, she came in my life as a blessing in disguise, I can say, though we don't know each other for long years or something, but that one meeting surprisingly, connected me with her, and from then I have not yet delved deep into Kriya Yoga especially, but now I wish to start my journey. As we know, the challenge is that we have to dedicatedly bring that 1.5 hour, initially 1.5 hour for sure, because there will be 15 minutes plus or minus hiccups when we do. So 1.5 hour of time is what we have to frame our mind, and then we have to delve into. So really fortunate to have Munima in my life. I am a practitioner from Himalayan tradition, and somewhere Mahavtar Babaji also is from the Himalayan sages, the revered master, and the dots got connected, and she just came in my life as a surprise element, when and when I heard her like first time, wo jo bolte hain, she doesn't have to tell that actually wo pyar hona chahiye, wo automatically ho gaya unse. Her one smile, somewhere connected that dot, and that's how she is with us. And we are all fortunate actually. She wants to happily share things with all of us. She wants to share her experiences, she wants to teach us. So who else can be better than her for us actually? So I have no words actually, I just freeze with my words sometimes. So that's what it is. And we are all fortunate to learn Kriya Yoga from her. Eventually, we can enroll, and we can again have more dedicated session with proper, with the proper flow of the class, and everything will be communicated to you. And please enroll. You can share your interest with us, right? Thank you so much, Madhavi, for this lovely introduction. And all of you, if you are interested in learning Kriya Yoga, then I will share on my website. I have already shared the exercises. There are 38 exercises. That is how we begin. And I have made 4 videos with 10 exercises each. So you start with first 10 exercises, and once you learn them, then you move on to the second 10 and third 10 and fourth 10. And take your time slowly. They are very easy to learn. It is all there on my YouTube channel. And there is no cost. Please understand, it is absolutely free.
right? Why? Because, you know, the knowledge of the sages, the masters, what I have received in abundance, there can be no charge for it. It is completely free. So if you all are willing to, it is your dedication, it is your sincerity and desire which is required to do it. Everything is there. I'm sure all of you know about Mahavatar Babaji, but I'll just still quickly share. This is Mahavatar Babaji, and he's supposed to be living in the Himalayas even now. His age is supposed to be 5,000 plus years, and we pray to him for Kriya Yoga, and he is our guru. So even though you may learn Kriya Yoga from anyone, but Guru is Babaji, and Babaji has taken this pledge that he is going to be available on earth for all Kriya Yogis. If you follow the path of Kriya Yoga, then Babaji is always there to guide you. And of course, you know, I also consider, all Kriya Yogis consider him to be the Guru. Another thing is, okay, all of us, I'm sure here, would be familiar with Hanumanji, correct? And we all call out to Hanumanji, like people on a regular basis read Hanuman Chalisa, or they say that if you have any problem, call out to Hanumanji. Does anybody know why do we call out to Hanumanji? Why is it? किसी को पता है कि हम हनुमान जी को ही क्यों याद करते हैं अगर कोई दिक्कत होती है तो? बताइए. Still available. Yes, very right बात. He's still available. बिल्कुल सही आपने बोला. तो हनुमान जी ने प्लेज ये लिया था कि जब तक राम का नाम लेने वाले रहेंगे तब तक वो धरती पर रहेंगे. तो क्या होता है कि हनुमान जी ने अभी भी अपना मतलब वो क्या बोलते हैं, जो अपना शरीर नहीं छोड़ते हैं, एक सूक्ष्म शरीर रखा हुआ है, वो अर्थ के उसमें है, मतलब अर्थ की ही रेल्म में है अवेलेबल. तो जब भी कोई उन्हें बुलाता है तो वो इमीडिएट आ जाते हैं. जिसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, लेट्स से आपके घर में कोई सडनली प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, और आपकी एक फ्रेंड रहती है पड़ोस में और एक फ्रेंड रहती है दूसरे शहर में, तो आप किसको बुलाओगे? प्रॉब्लम हो गई तो जो पड़ोस में रहती है उसको बुलाओगे ना, इमीडिएटली पड़ोसी को. जो दूसरे शहर में रहती है उसको आपको पता है अगर बुलाओगे भी तो आने में टाइम लगेगा, वो आ भी जाएगी लेकिन टाइम लगेगा, है ना. तो ऐसे ही हनुमान जी हमारे पड़ोस में हैं, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम उनको बुलाते हैं. बिल्कुल ऐसे ही बाबा जी भी हमारे पड़ोस में हैं. लेकिन उनका क्या है कि अगर आप क्रिया योग करते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले अगर आप क्रिया योग करना भी चाहते हैं आप उनको प्रे करिए, आप कोई भी दिक्कत हो उनको बुलाइए इमीडिएट. और मुझे तो 22 साल हो गए हैं, सब कुछ बाबा जी ने ही संभाला हुआ है. तो ये हमारे जो हैं बाबा जी का है, थोड़ा सा बाबा जी के बारे में. और इन्होंने ही लहरी महाशय को क्रिया योग सिखाया था, और ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने कृष्ण से दीक्षा लिया था, और कृष्ण के समय से बाबा जी हैं. और जब तक क्रिया, और बोलते हैं कि जब कल की अवतार आएंगे तब बाबा जी अपना शरीर छोड़ेंगे. और एक छोटा सा और ये आपको दिखा देती हूँ, ये है हमारे क्रिया योग के जो लाइनेज हैं हम जो मानते हैं. इसमें हम शुरू करते हैं भगवान कृष्णा से, लॉर्ड कृष्णा, क्रिया योग उन्हीं का दिया हुआ है. और जीसस क्राइस्ट भी हमारे गुरु आते हैं क्योंकि जीसस क्राइस्ट भी क्रिया योगी थे, उन्होंने भी क्रिया योग सीखा था. हमारे बाबा जी और लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी और योगानंदा जी, तो ये हमारे क्रिया योगा के गुरु हैं. Just for a little information. Yes. So anything else anybody would want to ask? Otherwise तो हमारा हो गया है. माधवी, Yeah. over to you. Thank you very much. Of course, we all want to learn more and more. I've appealed everyone to share their interest personally, either with you or with me. Now they all have the numbers and everything. I will share on the also.
Can you just quickly tell me, Ma, your number so that So I can be number? contacted Your on number? Telegram. So better to contact me on Telegram और मेरा email ID लिख ले muni.silentwisdom@gmail.com. मैं दे देती हूँ, एक मिनट चैट में डाल मैं देती यहाँ टाइप कर देती हूँ. अच्छा, आप कर दीजिए. हूँ. मेरा YouTube का जो चैनल है वो है साइलेंट विजडम. तो आप YouTube में जाके उस पे कर सकते हैं, काफी सारी चीजें हैं. और जस्ट रिआइट्रेटिंग, माँ ने जैसे बताया है, एक्सरसाइजेस जिसको भी करना है पहले देखना चालू करिए. Like, you know, viewing is something which will give that inspiration. Slow and steadily 1 to 10 exercises, 10 to 20, 20 to 38 बहुत अच्छे तरीके से YouTube पे सारा ऑलरेडी है. तो एक बार देख के उसे प्रैक्टिस करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए, और जब अपना विल पावर बन जाए कि yes, now I can dedicate my 1.5 hour time every day religiously, once you decide that, you can again come back to us, either directly contact Ma or you can call me also. We can arrange for few more sessions. Upon registration, one person is also, if they are enrolling, we will conduct the class and we will learn. I am enrolling myself, so for Kriya Yoga, to specially learn now, because I had lot of confusions actually in terms of choosing a guru. That's what I wanted to tell at that time, but it skipped out of my mind. Choosing a life guru is what is important, because I already had a guru tradition with me. From Swami Rama and from the tradition, I have learned yoga, and it's not that I was not progressing or something. But you know, somewhere there will be so many questions that will come when we really deeply dive into it and we delve deep and deep, and then we want to evolve. So that's where that surprise thing happened, and like, you know, she came into my life and eventually with all of us today. So choosing that guru is very important. So please decide and choose, and then we can, you know, in an organized way, we can conduct the classes. And as I said, you don't And have to decide and choose, you can date the guru. yeah, date the guru. She gave that option to me. Date with me, and I'm just come to her house. It's like a bliss to step in. So we can see that lush green behind you, your open meditation zone. So her house is surrounded with all spiritual vibes. The moment you enter in, only you will be in a different zone. So Thank you. we are again grateful to you, Ma. Thank you so much. So if we are done, then we will just prepare. Sure. So let's all close our eyes and just do a bit of nice scanning of yourself. Bring all your mind attention to your body, to your mind. Eventually understand that how beautiful is your soul. Scan yourself, scan your body, scan your mind, scan your soul. Take deep 5 inhalations. At your own convenience, just do it. We are not doing a proper guided meditation here. Just relax your mind. Completely come to a silence. Feel all the cells of your body. Touch yourself nicely, cuddle yourself. Touch yourself, love yourself. You will see how beautiful is your body. How beautiful is your mind that you're here. So imagine how beautiful is your soul, and how we need to work closely walking towards our soul. Take 5 deep inhalations and exhalations and feel the beautiful vibrations around you. The universe has come forward to bless you with the light energy, with the fire energy, the water, the earth, the space. The whole of the universe is with you today, blessing you in disguise.
We will close this with a short prayer. If you want to repeat after me, you can repeat the mantras. We will offer our prayer to the sun energy today as being a Sunday. Om Mitraya Namaha. One person can repeat after me so that I know that we are getting my voice proper. Om Mitraya Namaha. Om Ravaye Namaha. Om Yadavati Namah. Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namah. Om Bhanave Namaha. Om Bhanave Namah. Om Khagaya Namaha. Om Khagaya Namah. Om Ushnai Namaha. Om Namah. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Om Hiranyagarbhaya Namah. Om Marichay Namaha. Om Jai Namah. Om Savitray Namaha. Om Savitrai Namah. Om Arkaya Namaha. Om Arkaya Namah. Om Ravi Bhaskaraya Namaha. Om Bhaskaraya Namah. Om Dinakaraya Namaha. Om Raya Namah. Om Divakaraya Namaha. Om Divakaraya Namah. Just silently absorb the energy. Just calm your mind. Bring all your mind attention once again to your body and listen to this beautiful vibration of the universe, giving you the direction in your life to go ahead, to walk on the path of fire and light. Om Adityaya Vidmahe Sahasrakiranaya Dhimahi Tannah Surya Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. May there be peace in your body, peace in your mind, peace in your soul, peace and peace and peace around you. Gently open your eyes, take a nice shower. Thank you, everyone. Thanks for joining. Thanks, Munima. Thanks, Megha. Thanks, Sangeeta ji. Thanks, AK ji. Thanks, Sachidananda ji. Thanks, each and every one. If I missed out on any names, please forgive me. Thank you, each and every one, for joining. We will soon conduct separate sessions. One will be on Kriya Yoga. Sachidanand Bishwal ji, who has joined, is a specialist in Kundalini breathing and he's excellent in pranayam. So we will conduct sessions. The objective of Ojaswin is not to just force one person to just go in this direction or something. We try to share our knowledge, our experiences with our audience who comes with a willing heart and mind to progress in spirituality. Thank you so much. We will keep conducting sessions on mantra meditation, my zone. So we will do that shortly. Okay, thank you so much. Thank you. Yeah. So we will leave the Thank you. meeting now, Ma. You will share the recording.
I will Yeah. share the recording. Yes. Yeah. Thank you. Bye-bye. Bye. See you again soon, my love. Bye bye Madhvi. Bye, Thank you. Megha. Bye, bye, everyone. बहुत Bye-bye. Bye. बहुत Bye, अच्छा Veena लगा ji. माधवी. Bye. Bye. Bye, Ritu ji. Bye. Bye, AK. Hi. It was fantastic. Yeah, thank you so much. She Yeah. is fantastic, gifted soul who was chosen by Mahavtar Babaji actually for preaching. So Yeah. she carries a excellent aura, excellent aura. Matlab, I just love her. I don't know more about her. Yeah. Okay. Thank you. Bye. Bye, everyone.